اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، آپ حضرات کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو ہے۔ یہ میرا چینل نیا الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کی محبت و پیار سے بھی گرو کر رہا ہے، اور بھی آپ لوگوں سے محبت اور دعا کی درخواست ہے۔ میں سیریل وائز آگے جو ڈال ہی رہا تھا، لیکن بیچ میں کچھ ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جو ضروری ہے ڈالنا۔ ایسے میں آج کے ویڈیو کا تھمبنیل، پمفلیٹ، تھمبنیل، ہیڈ لائن یا ٹائٹل دیکھ رہے ہیں آپ۔ پیچھے میں نے بیک گراؤنڈ میں فرعون کا انٹرنیٹ سے ایسا فوٹو اٹھایا ہے۔ پیچھے بیک گراؤنڈ اگر غور سے آپ دیکھیں تو ایک فوٹو نظر آ رہا ہے، وہ انٹرنیٹ پہ فرعون کا فوٹو ہے۔ اور اگر آپ غور سے دیکھیں دہنے ہاتھ پہ فرعون کا فوٹو نظر آ رہا ہے، اور غور سے دیکھیں تو بائیں ہاتھ پہ جو اردو پڑھتے ہیں سفید میں لکھا ہوا ہے فرعون۔ تو اس لیے ہمارے ہاں اسلام میں سب سے بدنام زمانہ، سب سے ظالم اور سب سے خطرناک اور سب سے حرام الدہر بدماش ظالم بادشاہ گزرا ہے فرعون۔ اور ہندو بھائی ہمیشہ راون کا نام لیتے ہیں، ان کے ہاں سب سے زیادہ بدماش راچھس تھا۔ راون کو کہتے ہیں راچھس تھا۔ تو راون پنڈت بھی تھا، گیانی بھی تھا اور راچھس بھی تھا۔ راون پنڈت بھی تھا، گیانی بھی تھا، راچھس بھی تھا، ایسا ہندو آئیڈیالوجی میں کہا گیا ہے۔ اور ہمارے ہاں سب سے بڑا بدماش اگر بادشاہ کا نام لیا جاتا ہے تو فرعون کا لیا جاتا ہے۔ لہٰذا فرعون کا پیچھے فوٹو لگا کر کے اردو میں دیکھیے سفید میں لکھا ہے فرعون، اور اس کے اوپر میں نے ریڈ کلر سے اردو میں لکھا ہے ظلم کا انجام، آگے سوالیہ نشان، ظلم کا انجام، جرم کا انجام سوالیہ نشان۔ ہندی میں لکھا ہے جرم کا انجام پرشن واچک چنہ، اور نیچے انگلش میں بلو کلر سے لکھا ہے دا کانسیکوینسز آف آپریشن، دا کانسیکوینسز آف آپریشن کوشچن مارک۔ تو ایک ہمارے بوڑھے بزرگ کا ایک میرے کو 3 منٹ کی ویڈیو کلپنگ ملی ہے، جو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ انہوں نے حالات حاضرہ جو خاص کر کے ہندوستان کا اس وقت ماحول ہے کہ آگے الیکشن ہونے جا رہا ہے اور کچھ لوگوں دوارا ماحول خراب کیا جا رہا ہے، ایسے میں جو حالات حاضرہ کا اعتبار سے وہ بوڑھے چچا ہیں، ہندوستانی مسلمانوں کے لیے، ہندوستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے حالات حاضرہ پر انہوں نے ایک چھوٹی سی نظم پڑھی ہے۔ اس کا ویڈیو کلپنگ میں آگے آ رہا ہے، آپ کو سناؤں گا۔ اس کے بعد میں پھر اپنے دل کی بات کروں گا۔ دیکھیے وہ ویڈیو کلپنگ آ گئی چاچا کا، پہلے سنیں اور انہیں دعائیں دیں۔ پہلے سنیے۔ حکومت کے دل سے وفادار ہیں ہم، اشاروں پہ چلنے کو تیار ہیں ہم، مصیبت میں پھر بھی گرفتار ہیں ہم، مسلمان ہیں یوں فتاوار ہیں ہم۔ سزا مل رہی ہے عداوت سے پہلے، سمجھتے ہیں باغی بغاوت سے پہلے، مسلمان چین اور جاپان میں ہیں، یہی قوم روس اور یونان میں ہیں، یہی لیگ یورپ اور سوڈان میں ہیں، جہاں بھی ہیں یہ امن و امان میں ہیں۔ ہر ایک ملک میں تو وفادار ہیں ہم، مگر ہند میں سے تو غدار ہیں ہم۔ ہمیں روز دھمکی بھی دی جا رہی ہے، ہمیں روز دھمکی بھی دی جا رہی ہے، گھروں میں تلاشی بھی لی جا رہی ہے، بلا وجہ سختی بھی کی جا رہی ہے، عدالت یہاں سے اٹھی جا رہی ہے۔ جو معصوم تھے وہ تو مجرم بنے ہیں، جو معصوم تھے وہ تو مجرم بنے ہیں، جو بد فتنہ تھے آج حاکم بنے ہیں۔ کونسل میں بھی ہم کو یہ رہنے نہ دیں گے، ہمیں درد اپنا یہ کہنے نہ دیں گے، غم و رنج سہیے تو سہنے نہ دیں گے، ستم ہے کہ آنسو بھی بہنے نہ دیں گے۔ زباں بندیاں ہیں، نظر بندیاں ہیں، ہمارے لیے ساری پابندیاں ہیں۔ اب اردو زبان بھی مٹانی پڑے گی کہ بچوں کو ہندی پڑھانی پڑے گی، اور یہاں سب کو چندی رکھانی پڑے گی، رہو گے تو فردی کرانی پڑے گی۔ وفادار ہونے کا معیار یہ ہے، یقین پھر بھی آ جائے دشوار یہ ہے، تقاضا ہے اپنی جماعت کو چھوڑو، بس اب لیگ کی تم جماعت کو چھوڑو، مسلمانوں کی تم قیادت کو چھوڑو، نہیں تو چلے جاؤ بھارت کو چھوڑو۔ یہی نظریہ ہے، یہی ذہنیت ہے، اسی کا یہاں نام جمہوریت ہے۔ گراتے ہو تم مسجدوں کو گراؤ، مٹاتے ہو تم مقبروں کو مٹاؤ، بہاتے ہو گر خون ناحق بہاؤ، مگر یہ سمجھ کر ذرا ظلم ڈھاؤ۔ مظالم کا لبریز جب جام ہوگا تو ہٹلر اور ٹیٹو کا انجام ہوگا۔ ہمیں ملک سے ہے بھگانے کی خواہش، ہمیں دہر سے ہے مٹانے کی خواہش، تو سن لیں جنہیں ہے مٹانے کی خواہش، تو ہم کو بھی ہے سر کٹانے کی خواہش۔ کٹے گا سر تو یہ مضمون ہوگا، ہمالیہ سے شیلانگ تک خون ہوگا،
बिहार और यूपी में हम कुछ न बोले, बिहार और यूपी में हम कुछ न बोले, हुआ जुल्म दिल्ली में हम कुछ न बोले, किया कत्ल गाड़ी में हम कुछ न बोले, घरों में घुसाए तो हम कुछ न बोले। मजालिम अगर यूं ही होते रहेंगे तो क्या अहले ईमान सोते रहेंगे? अलग होके बरतानिया देखता है, हर एक कौम का पेशवा देखता है, ज़माना हर एक माजरा देखता है, कोई देखे न देखे खुदा देखता है। करेगा जो जुल्म यूं आज़ाद होकर, वो खुद ही मिट जाएगा आप बर्बाद होकर। बहुत अच्छे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। मैं दुआ देता हूँ दिल की गहराइयों से चाचा को कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको दुनिया और आखिरत की हर कामयाबी अता फ़रमाए। मेरे भाई मेरे दोस्तों, तमहीद में मैंने कहा आप हजरात वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। ये हालात हाजरा के मुतालिक मैंने तमहीद में थोड़ा सा बोला और ये चाचा ने यूँ समझ लीजिए पूरा नक्शा खींच दिया है। करीब करीब 90% बातें इन्होंने कह दी हैं। अब बाकी थोड़ा सा रह जाएगा, वो मेरा लाइव रिकॉर्डिंग है, मेरी आवाज़ है, मेरा लाइव रिकॉर्डिंग है। देखिए वो आया, उसको सुनिए, उसके बाद भी थोड़ी सी बात मैं मिलाऊंगा इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात शेयर करना है। छोटी सी वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लंबी नहीं होगी ये। एक मुझे वीडियो क्लिपिंग मिली है हालात हाजरा, यानी इस वक्त का जो हालत है हिंदुस्तान की, उस पे एक चाचा है, बूढ़े चाचा, वो बेहतरीन तरीके से हालात हाजरा के बारे में शायराना अंदाज में उन्होंने कहा है। मैं समझता हूँ जो कहा है बहुत सच कहा है, बहुत सच कहा है। आज का वीडियो मैंने कहा, आज का वीडियो बिलखुसूस सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए है, सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए। बाकी जनरल मुसलमान पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए भी हो सकता है, लेकिन ख़ास करके हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए है। और आपने आगे थंबनेल देखा कि आज के वीडियो का हमने थंबनेल ही बनाया है जुल्म का अंजाम, जुल्म का अंजाम या जालिम का अंजाम। मेरे भाई मेरे दोस्तों, मैंने बताया कि अभी मैं पहले आगे बोल रहा हूँ, थोड़ी सी भी बात मेरी सुन लें। नहीं, पहले एक काम करते हैं, पहले वो चाचा का वीडियो लगाएंगे, पहले वो चाचा का वीडियो लगाएंगे। आगे तमहीद में थोड़ी सी बात मैं बोलूँगा और उसके बाद वो चाचा का वीडियो क्लिपिंग पहले आप देखें, उसमें 90% बात समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह। हमें जब फिर ज़्यादा कहना नहीं पड़ेगा। और बाद में उसके पीछे मैं अपनी थोड़ी सी लाइव रिकॉर्डिंग करूँगा कि जो आप लोग देखेंगे कि आज के डेट में, यानी यूँ समझ लीजिए इस वक्त मार्च का महीना स्टार्ट है, मार्च 2024, और अब 1.5 महीना ही बचे हैं जनरल इलेक्शन के। हिंदुस्तान में जनरल इलेक्शन है और करीब करीब हम लोग ऑफिशियल तरह से तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को 18 करोड़ गिना जाता है, लेकिन अनऑफिशियल गालिबन हम लोग 30 करोड़ हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैंने कहा कि उमूमी तौर से पूरी दुनिया के मुसलमान, लेकिन खुसूसी तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ये वीडियो क्लिप बहुत ज़रूरी होगी। इसीलिए मैंने कहा जालिम का अंजाम। मैंने आज के वीडियो का थंबनेल, टाइटल या हेडलाइन जो कहें, थंबनेल बनाया है जालिम का अंजाम, जुल्म का अंजाम। अंजाम मतलब होता है रिज़ल्ट, परिणाम, जिसे हिंदी में कहते हैं परिणाम, इंग्लिश में कहते हैं रिज़ल्ट, उसको उर्दू में कहते हैं अंजाम। मेरे भाई, पहले तमीज़ में मैं थोड़ा इंशाल्लाह बोलूँगा और उसके बाद वो चचा का वीडियो क्लिपिंग लगाऊंगा। उसमें मैंने कहा शायराना अंदाज में उन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ा है। अल्लाह उनको अज़्र अज़ीम अता फ़रमाए, अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत की हर कामयाबी अता फ़रमाए। मेरी दुआ उनके लिए है। मैं नहीं जानता हूँ चाचा कौन है। एक वीडियो क्लिपिंग है 2-3 मिनट की, वो आप सुनेंगे, उसमें 90% बात कवर हो जाती है और बाकी 10% के लिए मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। वो इसलिए कि जनरल इलेक्शन 1.5 महीने बाद आने वाला है और हम लोग करीब करीब अनऑफिशियल 30 करोड़ मुसलमान हैं। 30 करोड़ हिंदुस्तान में मुसलमान का मतलब ये हुआ करीब करीब सऊदी अरब से 6 गुना ज़्यादा। सऊदी अरब की जितनी जनसंख्या है उससे 6 गुना ज़्यादा हम मुसलमान हिंदुस्तान में इस वक्त 2024 में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और दुनिया में हमसे ज़्यादा मुसलमान सिर्फ इंडोनेशिया में हैं।
यानी जैसा आप सभी लोग जानते होंगे दुनिया में 57 मुल्क हैं मुसलमानों के, उनमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम मुल्क नहीं है इंडोनेशिया, फिर भी सबसे ज़्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में हैं, करीब 42 करोड़ मुसलमान, और दूसरे नंबर के हम ही लोग हैं हिंदुस्तान में, करीब 30 करोड़ मुसलमान। तो चाचा ने वीडियो क्लिपिंग में आगे जो बोल दिया वो 100% सही है, अल्लाह उन्हें अजर अज़ीम अता फरमाए। और मैं इशारा करूँगा कि हम मुसलमान जो 30 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, अल्लाह के वास्ते कल से गालबन रमज़ान भी शुरू हो रहा है, रमज़ान का मुक़द्दस महीना आ रहा है, और अल्लाह का वास्ता मैं दे रहा हूँ जो कि दूसरे किसी का वास्ता दिया नहीं जा सकता, इसलिए मैं अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ कि अल्लाह के वास्ते आपस में हम सब हिंदुस्तानी मुसलमान या पूरे बर्र सगीर के मुसलमान, चाहे वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान के हों, लेकिन खुसूसी तौर पे हिंदुस्तान के मुसलमान आपस के जो इख्तलाफात हैं कि देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, जमात इस्लामी वगैरह वगैरह, ये सब नहीं है, अच्छी बात नहीं है। ये बेवकूफ़ी और जाहिलों का इख्तलाफ है, ये अल्लाह माफ़ करे मुझे, मैं कह रहा हूँ ये बेवकूफ़ और जाहिलों का इख्तलाफ है। अल्लाह देखिए मेरे दोस्त, जो इस्लाम की बुनियाद है 5 चीज़ें, उसमें तो किसी का इख्तलाफ है ही नहीं। अभी तौहीद पे किसी का इख्तलाफ नहीं है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसी की इबादत होगी, किसी की इबादत अल्लाह को छोड़ के होगी ही नहीं, सिर्फ अल्लाह की इबादत होगी, तौहीद में किसी का इख्तलाफ नहीं। 5 वक्त नमाज फ़र्ज हैं रोज़, डेली के 5 वक्त, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, इसमें किसी का इख्तलाफ ही नहीं। 12 महीनों में एक महीना आता है रमज़ानुल मुक़द्दस का, रमज़ानुल मुबारक का, 30 रोज़े में कोई इख्तलाफ नहीं। चौथा चीज़, जब हम मालदार हो तो हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज है, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं। 5वां चीज़, जब हम मालदार हो तो ज़िंदगी में एक बार हज बैतुल्लाह फ़र्ज है, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं। अब ये बेमतलब जाहिनाला इख्तलाफ है कि सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो हाथ सीने पे बांधेंगे कि नाभ पे बांधेंगे। अरे हम कहते हैं सीने में बांधिए तो भी सही, नाभ पे बांधेंगे तो भी सही, और बिना बांधे हुए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के इत्तबा कीजिए, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पे चलिए, बिना बांधे हुए, बिना ना सीने पे बांधिए ना नाभ पे बांधिए, कहीं ना बांधिए, खड़े रहिए वैसे। ऐसा नहीं होता। आपका रब खालिक है, वो आपके दिल की कैफियत को देखता है। अभी मैं लंबी गुफ्तगू कर जाऊंगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि शॉर्टकट ही रहे कि आपका रब खालिक है, सबके दिलों के भेद को जानता है। इसलिए बार बार मैं हर अपने वीडियो में कहता हूँ कि रोए ज़मीन पे कुरान मुक़द्दस बाद, कुरान मजीद के बाद सबसे मुक़द्दस किताब है सही बुखारी। बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लाह उन्हें अजर अज़ीम अता फरमाए, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पहली हदीस लिखी है इन्नमल आमालु बिन्नियात। तो नीयत असल देखता है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला सीने पे हाथ, नाप पे हाथ, बिना हाथ बांधे खड़े हैं, ये नहीं देखता। आमीन तेज बोल रहे हैं कि सिलो बोल रहे हैं, ये इख्तलाफ क्या है? ये जाहिलाना इख्तलाफ है ये। बल्कि जो लोग मुजतहिद लोग थे उन्होंने अपने हिसाब से इज्तिहाद किया है, लेकिन दोनों सही है, चाहे तेज चिल्ला के आमीन बोलिए चाहे धीरे बोले, वो नहीं। ये तो जाहिल लोग इख्तलाफ करते हैं मेरे भाई। मैंने बताया कि इस्लाम की जो बेसिक 5 बातें, कहाँ इख्तलाफ है? तौहीद में किसी का इख्तलाफ नहीं, 5 वक्त की नमाज फ़र्ज होने में किसी का इख्तलाफ नहीं, रमज़ान के 30 रोज़े फ़र्ज होने में किसी का इख्तलाफ नहीं, मालदार हैं तो आप 2.5% ज़कात देने में किसी का इख्तलाफ नहीं, मालदार हैं और मकरूज़ नहीं है, कुछ सब कुछ आपका ठीक ठाक है, माल अल्लाह ने दिया तो उसके शुक्राने में एक बार, कम से कम एक बार ज़िंदगी में हज बैतुल्लाह का किसी का इख्तलाफ नहीं, फिर कहाँ इख्तलाफ हो गया? तो इसलिए हम और आप अपने इख्तलाफात को भुलाकर, जैसे मैंने कहा कि इख्तलाफ को भुलाकर एक हो जाएँ, होशियार हो जाएँ, नेक हो जाएँ। एक हो, नेक हो, होशियार हो, ये इशारा काफ़ी है। तीनों बातें ज़रूरी हैं। पहले नेक हो, फिर एक हो, फिर होशियार हो। इलेक्शन आने जा रहा है, वो चाचा ने अपने वीडियो क्लिपिंग में जो कह दिया वो आप समझ जाएं। और उसके बाद मैंने चूँकि आज का वीडियो को जो थंबनेल बनाया है कि जालिम का अंजाम, तो इसके लिए हमारे शरीयत ने खुद कहा है, कुरान हदीस का जितना भी मजमुआ है, लब्बो लबाब है, उसका सारांश है, कंक्लूजन है, वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक बार काफिर को, फासिक को, मुशरिक को, मुल्हिद को, किसी की भी हुकूमत बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जालिम को किसी कीमत पे अल्लाह बर्दाश्त नहीं करते। छोटी सी इतिहास देख लें, जब मुग़ल बादशाह नेक थे तो चली हुकूमत, और बदकार हुए और जालिम हुए तो उनको अल्लाह ने ख़त्म कर दिया। फिर आ गए अंग्रेज़ हिंदुस्तान में,
बर सगीर में, हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ आया और जुल्म सितम करने लगे तो उनको भी अल्लाह ने जूते मार के भगा दिया और देश आज़ाद हो गया। कहने मतलब जालिम की हुकूमत नहीं हो सकती, जालिम की हुकूमत नहीं हो सकती। बेहतरीन एक शायर ने शेर पढ़ा, मैं पढ़ दूँ, बार बार मैं पढ़ दिया करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। एक शायर ने कहा है, यानी आज के जो दौर हाजा के अतबार से अमेरिका, ब्रिटेनिया, इज़राइल और जो कुछ भी मतलब इस्लाम दुश्मन समझे जाते हैं मुल्क, उनके बारे में कहा है कि जालिम ये ना समझे, कोई भी जालिम हो, जालिम ये ना समझे कि खुदा मजबूर है। अमेरिका, ब्रिटेनिया, इज़राइल क्या चीज़ है? लंगड़े मच्छर से मरा नमरूद है, लंगड़े मच्छर से मरा नमरूद है। एक बार फिर सुनिए, जालिम ये ना समझे कि खुदा मजबूर है। ब्रिटेनिया, अमेरिका, ब्रिटेनिया, इज़राइल क्या चीज़ है? लंगड़े मच्छर से मरा नमरूद है। इसलिए मेरे भाई, एक दूसरा और कि जालिम के लिए रस्सी थोड़ी ढीली की जा सकती है, अल्लाह ताला ढीला करते हैं। जालिम की थोड़ी रस्सी ढील कर सकते हैं, पकड़ कभी जल्दी हो जाती, कभी बाद में हो जाती है, लेकिन पकड़ ज़रूर होती है। इसलिए बूढ़े चाचा ने अपने शाराना अंदाज में भी कहा है कि जो जुल्म करेगा वो खुद भुग जाएगा। हमारे देहात में एक लैंग्वेज है कि जो चिराग को बुझना होता है, तेल ख़त्म होता है, चिराग जब बुझना होता है तो भभकता बहुत है, तो जो भभकेगा वो बुझ जाएगा, जो जलेगा वो आज एक न एक दिन बुझ जाना है। ऐसे में आप होशियार हो जाएं। मैं तमहीद में भी कुछ मुझे बोलना है, बोलूँगा इंशाअल्लाह, और बाकी उसके बाद बूढ़े चचा का वो लगाऊंगा, उसमें मैंने कहा 90% बात कवर हो जाएगी। और अपनी मैंने जो अभी 10-15 मिनट 12 मिनट की रिकॉर्डिंग कर दी, मैं समझता हूँ ये पूरी बात हो गई कि हमको और आपको, सारे मुसलमानों को, ख़ास करके हिंदुस्तान के मुसलमानों को, सारा इख्तलाफ ख़त्म करके 3 चीज़ ज़रूर बनना है। नंबर 1, ईमान को मजबूत कीजिए, नेक बनिए। दूसरे, आपस में इख्तलाफ ख़त्म करके एक बनिए। और तीसरे, होशियार बनिए, इंटेलिजेंट बनिए। दुनियावी दीनी इल्म, कुरान हदीस का इल्म हासिल कीजिए, दुनियावी इल्म हासिल कीजिए। और इल्म ना हो तब भी अपने उलमाए कराम से पूछ के, मिल के, और इंटेलेक्चुअल बनिए, होशियार बनिए। बड़ी लंबी बात हो जाएगी कि दीन नहीं, अगर इल्म नहीं रहेगा तो कैसे होशियार होंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, फिर उसके बाद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की पूरी जमात करीब करीब उम्मी अनपढ़ थी। अभी कुछ सालों पहले, यानी 50 साल भी नहीं गुजरे, एक मोहम्मद पालन हक्कानी थे, कव्वाल थे गुजरात के, लेकिन अल्लाह ने गायबी इल्म दी। अगर जो जानता है जान जाने, तो मेरे चैनल पे आप दो, मेरा चैनल है, ये चैनल पे जो ये है डिजिटल लाइब्रेरी 313, डिजिटल लाइब्रेरी 313, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक दूसरा मेरा चैनल है, उसमें मिक्स हर चीज़ डाला हूँ, उसमें डाल चुका है हक्कानी साहब के मुतालिक बातें, वो है अपना भारत। ऐसा लिखते हैं @ अपना भारत, कैपिटल में, और लास्ट में 8 @ अपना भारत 8। अपना भारत जो है इंग्लिश में लिखना होगा APNABHARAT, यानी कैपिटल में। तो मेरे दोस्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे लिए आप दुआएं करें, हम नेक बने, एक बने, होशियार बने, यही आज का मकसद है। बाद में मैं दुआ करूंगा, अल्लाह करे मेरी कोशिश, मेरी बातें आप सभी लोगों को, हजरात को समझ में आ जाए। अल्लाह मुझे भी, आपको भी एक नेक, एक और होशियार बनाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी। देखिए मेरे भाई, मेरे दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत अहम है, ख़ास करके हम हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए। आगे मैंने तमहीद में भी बोल दिया, और आपका आज का थंबनेल भी आपने लिख दिया, जालिम का अंजाम। और अल्लाह ने मुझे जितना दीनी और दुनियावी इल्म दिया है, उस इल्म के मुताबिक मैंने लाइव रिकॉर्डिंग में कह दिया। अब 2-3 बातें बची हैं। जैसे मैंने तमहीद में कहा कि हिंदू भाई भी कहते हैं कि रावण पंडित था और राक्षस था, ताकतवर था, यहीं श्रीलंका का रहने वाला था। वही हिंदू भाई ये भी कहते हैं, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तेरा वड़ घर दिया न बाती। मतलब 1 लाख पूत यानी बेटे, और 1.25 लाख नाती, उसके 1.25 लाख नाती थे, 13 वड़ घर दिया न बाती, यानी सब ख़त्म हो गया। देखिए, अल्लाह के नाम का लोगो जा रहा है। हम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलमा पढ़ने वाले हैं, और उनके प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे नबी, अल्लाह के दुलारे नबी, और सारे नबियों के इमाम, हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम का लोगो आया। हम लोग कलमा इस तरह पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हिंदुओं के रावण
وہ ختم ہو گیا۔ یہ ظلم اور ظالم کے متعلق آج کا ویڈیو ہے، اس لیے میں تھوڑا سا اس پہ یہ کہہ دوں، آگے بھی میں نے غالباً کہا ہے کہ ظالم یہ نہ سمجھے خدا مجبور ہے، اور امریکہ، برٹین یا اسرائیل کیا چیز ہیں، لنگڑے مچھر سے مرا نمرود ہے۔ یہ شاعرانہ انداز ہو گیا۔ اور چاچا صاحب کا جو آپ نے ویڈیو کلپنگ آگے دیکھا میرے تمہید کے بعد، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ظالم خود بخود جلے گا اور بجھ جائے گا۔ ایسے میں ہمارے و آپ کے لیے اللہ رب العزت نے خود قرآن میں آرڈر کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، جتنا بھی مشکل وقت آ جائے صبر اور نماز سے کام لو، بے شک اللہ یعنی ہمارا رب، ہمارا اور آپ کا اور سب کا رب ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے آگے میں نے لائیو ریکارڈنگ میں کہا کہ ہم کو نیک اور ایک اور ہوشیار بننا ہے۔ ایسے میں میرے بھائی آپ لوگ بات سمجھیں، اور جو نہیں سمجھ پاتے ہیں مجھے کمنٹ کریں، میں انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور اگر کبھی موقع ملا تو سامنے مل کے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ لاسٹ ہو رہا ہے، ویڈیو کو آخر کرنا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں یا چاچا نے جو کہا ہے آپ حضرات سمجھ جائیں، اور اللہ کرے اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو صابر اور شاکر اور سچا پکا مسلمان بنائیں، اور دنیا اور آخرت کی ہر کامیابیاں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائیں۔ پوری زندگی توحید پرست سچا پکا مسلمان بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔